अफजल है। कुरान मजीद का पहला लफ्ज इकरा नाजिल हुआ, जिसका मतलब है पढ़ो, इल्म हासिल करो, अपने आप को तालीम दो और तालीम याफ्ता हो। एक आम तकियानु से तस्वुर ये भी है कि इस्लाम के उसूल मुसलमानों के तालीम पसमाइंदगी के जिम्मेदार है, लेकिन इस तरह के तकियानु से तस्वुर की कोई बुनियाद नहीं। दरअसल इस्लाम अपने मानने वालों में इल्म और तालीम के खिलाफ नहीं, बल्कि इस्लाम ने तो इल्म और तालीम पर मुनासिब जोर दिया है और इसके लिए कई हिदायतें भी दी है। इस्लाम में ये भी कहा गया है कि तुम इल्म की तलाश में चीन की तरह दूर तक जाओ। तकरीबन 14 सदियां कबल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि इल्म हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। इस्लाम की नज़र में वो मुआशरा तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक वो इंसानी वसाइल को तालीम के जरिए सही इस्तेमाल ना किया जाए। आज भी मुसलमान तालीम सतह पर सबसे नीचे है। तालीम ही वाहिद तरीका है जो समाजी और इक्तिसादी अमल को बढ़ाता है। हिंदुस्तान में गैर मुसलमानों के मुकाबले मुसलमानों की पसमाइंदगी इस वक्त तशवीश बनी हुई है। हिंदुस्तान में मुसलमानों की पसमाइंदगी कई वजाहत है, जैसे खानदान का बड़ा हाजम, मदरसा तालीम और जदीद तालीम के दरमियान रबत की कमी वगैरह वगैरह। तारीख इस्लाम के उस मरहले पर मुसलमानों की हालत को बहुत कम हाल में महसूस किया और उम्मत को पहचानने और तालीम में मुसलमानों की गैर इस्लामी रसूमाती को दूर करने के लिए आ गया है। इस तरह शेख अबू साद साहब ने इस्लाम को पाक करने और मुसलमानों को बेहतरीन तालीम से बाइख्तियार करने की कोशिश की। इसी सिलसिले में 2006 में शेख अबू साद साहब ने अल हिदाया पब्लिक स्कूल कायम किया। यही जुनून यही ख्वाब मेरा है, यही जुनून यही ख्वाब मेरा है, वहाँ चिराग जला दूं जहाँ अंधेरा है। आइए अब हम भी देखते हैं एक छोटा सा मंजर उस शख्स की जिंदगी का जिसने अल हिदाया को बुलंदियों तक पहुँचाया। Mr. Abu Saad Sheikh was born in Jamuri, Azamgarh, Uttar Pradesh on 11th November 1967. He attended madrasa to complete his primary education. For higher studies, he went to Aligarh Muslim University. He completed his MBA there. After completing his management studies at Aligarh Muslim University, he worked in various management positions at the Times of India, the famous newspaper. For about 13 years, he played a crucial role in the establishment of the DNA. He was the epitome of kindness and generosity. He lived his entire life for the welfare of the Muslim community. He wanted to make the community educationally, socially, spiritually, and financially aware, progressive, and strong. To uplift the community, he laid the foundation of Al Hidayah Public School and introduced a successful Islamic school in Mumra for the first time. Although he encountered many difficulties at the first when he sought help, he endured them all with absolute kindness. With much diligence and perseverance, he managed to institutionalize his social work. He also inspired many people to join his mission. His mission was to impart quality education with Islamic culture, resourcing the Ummah physically, spiritually, and financially. Self-financed institution with economically sustained education, including the habit of contributing in Ummah to produce world-class Muslim leaders in the field of medicine, science and technology, civil services, media, jurisprudence, management and Islamic fiqh, etc. Developing positive approach towards achieving 100% education among Muslims. He strived to revive the golden Islamic era in which Muslims used to acquire complete education under one roof. He vowed to make the Muslim community self-reliant in all aspects of life. An apostle of unparalleled genius, he aimed to foster in young learners a belief in the superiority of Allah, reverence for the Prophet, a desire to acquire Islamic knowledge, and adaptation to the Islamic way of life. He never made excuses for lack of funds or cooperation. On the glorious way to achieve his goal, it was solely due to the commitment and dedication of the late Mr. Abu Saad Sheikh that Al Hidayah group of institutions reached the pinnacle of success within 17 years. During his lifetime, many great strides were made, such as Jamiatul Hidayah, Al Hidayah Academy of Competition,
Al Hidayah campus, and several branches of Al Hidayah Public School. His life was the epitome of a true Islamic person. During his lifetime, he practiced all Islamic practices. He was one of the strongest pillars of the Tablighi Jamaat in Thane district. He always guided his team that education in an Islamic environment promotes good discipline, good behavior, tolerance, and respect to achieve goals through the development of potential, thereby creating role models for the community. He wanted every student to feel valued and happy and to be able to enjoy their learning in a stimulating environment that honors their individuality. So, was all about Abu Saad sir and his mission and vision. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamida. So, the equation is 5x is equals to 20. We will move the number at right side of the equation. Now, the equation would be x is equals to 20 upon 5. Therefore, the value of x is equals to 4. Did you all understand? Yes, ma'am. MashaAllah, Al Hidayah Public School deserve a salute because they are balancing in well manner between modern education and Islamic culture. अब लेना चाहिए एक छोटा सा ब्रेक. मिलेंगे दोपहर 12:30 बजे स्कूल के बाहर और कोशिश करेंगे कि स्कूल की और इन्फॉर्मेशन जान सके. अगर आप अपने बच्चों का फ्यूचर बनाना चाहते हैं और स्कूल के बारे में और बातें जानना चाहते हैं तो कहीं जाइएगा नहीं. हम मिलेंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद. अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद, सुस्वागतम. फाइनली हम आ चुके हैं स्कूल के बाहर और स्कूल की छुट्टी में सिर्फ 10 मिनट बाकी है. अपना वक्त ज़ाया ना करते हुए आइए पेरेंट्स से बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि पेरेंट्स की राय जान सके स्कूल के बारे में. शहर में इतनी सारी स्कूल है, उसके बाद भी आपने अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए इस स्कूल को क्यों चुना? मेरे तो 3 बच्चे यहाँ से फारिग हुए हैं और इस स्कूल का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने ना ही हमारे बच्चे को तालीम दी, इसके साथ ही साथ तरबियत भी दी है. और इस स्कूल का अहम माशाअल्लाह. चलते हैं दूसरे पेरेंट्स से बात करते हैं. एक्सक्यूज मी, शहर में इतनी सारी स्कूल है, उसके बाद भी आपने अल हिदाया को ही क्यों चुना अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए? I am a doctor and my daughter Naba has completed SSC from this institution. Now, Alhamdulillah, she is in a medical field. Admission लेने से पहले मैंने यहाँ के चेयरमैन डॉक्टर सैयद कमाल अंजर सर से बात की थी, तो उन्होंने मुझे इस इदारे के एम के बारे में बताया. It is not only to educate, but to provide good quality education with Islamic culture and rich mind, souls and body with Islamic and modern education in a way that will make us lead the ummah of all aspect and field. That's why I have chosen this institution for my daughter. अरे बहनी, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन हमका ये बात की खुशी है कि हमार बेटवा जो है यह स्कूलिया में हाफिजा करत है. हम मुफ्ती याकूब सर के शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमें इस स्कूल के बारे में बताई है. हमार दूसर का लड़का भी यह स्कूलिया में पढ़त है, लेकिन अंग्रेजी पढ़त है. अगर तोहरे भी एक दूटे है तो डाल दियो, बहुत नीक स्कूलिया है. Alhamdulillah, I am satisfied from the system of education in Al Hidayah Public School. मेरी बेटी हफ्सा ने यहाँ से SSC कंप्लीट किया है. ये स्कूल का ही अहम रोल है जिसकी वजह से आज हमारी बेटी दीन के कामों में लगी है. माशाअल्लाह.
आप कुछ कहना चाहते हैं स्कूल के बारे में? इस इदारे में पहले एक टीचर बाद भी शोएब सर, यूसुफ सर, मैनाज मैम हर वक्त बच्चों के लिए हाजिर होते हैं। जब भी मैं आता हूँ, कोई प्रॉब्लम हो, ये मेरे मसले को हल करने की कोशिश करते हैं। एक्सक्यूज मी, शहर में इतनी सारी स्कूल है, उसके बाद भी आपने बच्चे के लिए एजुकेशन के लिए स्कूल को चुना, कोई खास बात? This is a very good point to discuss, that what is the difference between Al Hidayah and other schools. So let me tell you that देखिए, आमतौर पर स्कूलों में क्लास में लगभग 60 बच्चे होते हैं और टीचर्स को सिर्फ आधे घंटे मिलते हैं एक लेक्चर के लिए। ऐसे में वो सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाती और फिर उसके लिए पेरेंट्स को ट्यूशन लगाना पड़ता है, कुरान की तालीम के लिए उसे मकतब भेजना पड़ता है। इन सब में बच्चे को 13 से 14 घंटे काम करना पड़ता है और उसका बचपन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इसकी वजह से बच्चों का इंटरेस्ट स्टडी से हट जाता है और उसी का रिजल्ट है कि सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट मुस्लिम कम्युनिटी से है, सबसे कम ग्रेजुएट सिर्फ 3% मुस्लिम कम्युनिटी से है। ऐसे में अल हिदाया ने क्या किया कि सबसे पहले एक क्लास में बच्चों के नंबर कम किए, जो कि 40 ये तुम्हारे बाजू में बैठा उसको इस तरह डिजाइन किया कि बच्चों को ट्यूशन की जरूरत ना पड़े। हम पेरेंट्स को हर बार ये कहा जाता है कि अगर कोई पॉइंट बच्चे को समझ में नहीं आया है तो वो उसे सॉल्व कर देते हैं। एक्स्ट्रा क्लास के जरिए या फिर क्लास में ही बच्चे को अलग से समझा दिया जाता है। इस तरह से बच्चा ट्यूशन जाने से बच जाता है और पेरेंट्स की पॉकेट में से कोई एक्स्ट्रा खर्च भी नहीं होता। तीसरा, कुरान और दुनियात का भी मुकम्मल इंतज़ाम है जिसमें बेहतरीन उलमाए पढ़वाया जाता है, इसीलिए बच्चे को मकतब भी नहीं जाना पड़ता। यहाँ भी खर्च और टाइम दोनों बच जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कई बच्चों ने इसी स्कूल से हिफ्ज़ मुकम्मल किया है और इसमें सिर्फ बच्चे का 7 से 8 घंटा लगता है और उसका बचपन भी बना रहता है, जो कि बहुत ज़रूरी है उसके डेवलपमेंट के लिए। थैंक यू। माशाल्लाह, फैंटास्टिक। आपको कोई ऐसी बात जो अल हिदाया के बारे में अच्छी लगी हो? Yes, I am an engineer. Before taking the admission of my child in this institute, I spoke with General Secretary Maulana Sheikh Musab Nadwi about the future plan of the school. He said that we are planning to start Al Hidayah Knowledge City, in which all the facilities will have modern education along with Quranic education. That was dreamed by our founder, late Abdusad Sheikh. Thank you. माशाल्लाह, I want to say a few words for the management of Al Hidayah Public School. नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। पेरेंट्स, देर ना कीजिए अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए और मेरे ख्याल से स्कूल का इंतखाब जरूर करें। लिमिटेड सीट्स आर अवेलेबल, हरी अप। सादा दौर दवार दिखता नहीं, सादा दौर दवार दिखता नहीं, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। Students, here's your backup time. Bus 1 and 2 students, please come down. Parents, students are requested to assemble in hall. Say salam and